Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 20. The chapter name is economic system. So first of all, we'll start this chapter with a short introduction of it. First I'm going to explain you the headline of this chapter. The economic system, what does it mean? So exactly it means like a जो भी आर्थिक अर्थव्यवस्था चल रही है, फाइनेंशियल सिस्टम जो जिस तरह से हमारी कंट्री का चल रहा है, ये उससे रिलेटेड है. So now start it. Every country or economy has to face some major problems such as what goods shall be produced, how shall goods produced, etc. And the government has to take a decision to solve these issues. On the basis of the decision of the government, not only the economic problems are solved, but the resident of the country also earn their livelihood, and hence all the economic activity are carried out. If we study the economic of different countries, we will find that in some countries the task of production and distribution is done by the government. In this country, the factors of the production are owned by the government. In this country, the various problems like what shall be produced and what goods shall be produced, for whom the goods produced, etc. are solved by the government. This system is named as the socialist system. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, क्या प्रोड्यूस होंगी, किसके लिए प्रोड्यूस होंगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है. तो ये जो सिस्टम कहला रहा है इसी को हम कहेंगे सोशलिस्ट सिस्टम. On the contrary, there are the number of the countries in which the interference of the government is very less. All the problems of the economy are solved by the market forces. The factors production are owned by individual instead of the government. These people produce goods on the basis of the demand of the market. The goods are produced for only those people who have capacity to purchase those goods. This system economy is known as the capitalist economy. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि ये जो सिस्टम है, जिस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस तरह से भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है किस तरह से इकोनॉमी को चलाना है, तो इसे ही हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. Along with there are several countries in the world where the mixed system is adopted. In such countries where some factors of the production are owned by the government while some other factors are owned by the individual. The decision regarding the major issues are taken by the government and private persons collectively. In such economics, a mixed and mingled process is adopted. Now we see the meaning and the definition of the economic system. Now what is the meaning and definition of the economic system? We are going to see in this here. The system which operates the economic activity of a country is called the economic system. So see, जो system ये operate करता है कि क्या economic activity चल रही है country में या किस तरह से चल रही है, उसे हम कहते हैं economic system. All the decisions related to the economy are taken by the system as determined by the society, such as what commodities are be produced, how to be produced, for whom to be produced. On the basis of this decision only the consumption, production, exchange and distribution are determined in the economy. The day-to-day life of the people of the country depends upon this decision defined as below. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस यही सारे डिसीजन, जैसे कि क्या गुड्स प्रिपेयर करने हैं, क्या गुड्स कहाँ पे भेजने हैं, किस तरह की कमोडिटी की ज़रूरत है, कंजम्पशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जहाँ डिसाइड की जा रही है, यही पूरा इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आता है और यही पूरा इकोनॉमी है. The day-to-day life of the people of the country depends upon the decision defined as below. According to the Professor A.J. Brown, economic system is a medium by which people get their living. अब जो प्रोफेसर हैं A.J. ब्राउन, उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है? मीडियम है पीपल्स के लिए फॉर देयर लिविंग. Professor M. Gotalik, economic system is a study of those ways of a complicated human relationship by which the limited means are used to satisfy several private and public needs. Thus, it is clear that the economic system is meant by the institutional structure under which the human life is conducted. This is an expanded concept and its form the changes with the time and situation. अब इसीलिए ये जो है इकोनॉमिक का सिस्टम जो है, ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से क्या है? क्लियर है. दिस इज़ एन एक्सपांडेड कॉन्सेप्ट एंड इट्स फॉर्म चेंजेस विद द टाइम एंड सिचुएशन. और ये जो है इसमें चेंजेस भी परफॉर्म होते रहते हैं इसके कॉन्सेप्ट में विद द टाइम एंड सिचुएशन.
Briefly, following are the main characteristics of the economic system. The chief objective of the economic system is to solve the economic problems. The main problems of an economic are what should be produced, for whom should be produced and how should be produced. अब देखिए जो चीफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हमें सॉल्व करना है ताकि उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सके. उसके बाद जो एक और प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है और कैसे हमें प्रोड्यूस करना है. फिर तीसरा है द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स द इकोनॉमी टू अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड द मेथड्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम. Economic system is a group of institution. The economic system is related to the country or a group of a country. The economic system is always changing in nature. In this way, it is clear that to solve the various problems related to the economy, three types of economic system are mainly found in the world, such as the capitalist, socialist, and mixed economy. The basic differences between these three systems is who is the owner of the factor of a production and how these factors are used. The detailed description of all these three systems is as follows. अब चलिए देखते हैं क्या क्या है वो सिस्टम्स और उनके डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे. कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी. अब क्या कैपिटलिस्ट फॉर्म है इकोनॉमी का वो हम देखेंगे इसमें. इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट. अब देखिए यहाँ पे कई सारे कंट्री के नाम लिए गए हैं और यहाँ पे क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एग्जिस्ट करती है. Capitalist economy is known by the several names as the market economy, laissez-faire and the open economy, free economy etc. Capitalist economy को जो है वो और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे यहाँ पे बताया गया है मार्केट इकोनॉमी, लीजर फेयर और द ओपन इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी के नाम से. Capitalism has been defined in many ways according to the Professor Locke and Hoots, and capitalism is a system of the economic organization featured by a private ownership and the use of a private profit of a man-made and nature-made capital. According to the John Streechy, the word capitalism is meant by the economic system in which factors and the firms are owned by the individual. In capitalism, the world works with the objective of profit and not loss. Thus, it is clear the capitalism production and distribution are owned by the private person and they use to store the capital to earn profit for themselves. अब यहाँ पे बताया है कि जो अकॉर्डिंग टू जॉन स्ट्रिची की अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या है इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी इन जो भी फैक्ट्रीज़ हैं फार्म्स हैं ये सारी इंडिविजुअल्स होती है मतलब खुद की ही होती है और यहाँ पे जो भी वर्क किया जा रहा है जिस भी तरह का ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट का है ना कि लॉस का. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वो चलिए देखेंगे आगे. प्राइवेट ओनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट पीपल. Thus, in the capitalist economy, individuals have the right to earn money and to spend according to their desire. Economic freedom. In capitalist economy, there is a freedom to choose any occupation and to run it. Consumers have also the freedom to choose the goods according to their interest and habit. अब देखिए प्राइवेट ओनरशिप क्या है जिसका अपना प्रोडक्शन चल रहा है जिसकी अपनी फैक्ट्री है उसकी अपनी ओनरशिप चलेगी. इकोनॉमिक फ्रीडम है उसके लिए वो क्या कमा रहा है नहीं कमा रहा है क्या इंटरेस्ट लग रहा है उसका प्रॉफिट मोटिव ही रहेगा कि उसको कितना प्रॉफिट उससे कमाना है. प्रॉफिट मोटिव होल्ड्स द हाईएस्ट प्लेस इन दिस सिस्टम देयरफॉर द प्रॉफिट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम. ऑल द एक्टिविटी इन दिस सिस्टम आर ऑपरेटेड टू अर्न अ प्रॉफिट. द मेन एम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन. देयर आर टू क्लासेस इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम सच एज द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द लेबर क्लास. द कैपिटलिस्ट क्लास जनरली पे लेस वेजेस टू मैक्सिमाइज their profit and therefore it is said that the capitalist economic system is based on the exploitation. अब देखिए बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो क्लासेस हैं ठीक है जो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम के हैं एक क्लास होती है उसकी जो कैपिटलिस्ट है और दूसरी होती है लेबर क्लास. तो यहाँ पे क्या होता है जनरली वो लेस पे ही उनको वेजेस जो है दिया जाता है और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाता है तो जो कि गलत है. तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है. प्राइस मैकेनिज़्म. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ ऑपरेटेड बाय द प्राइस मैकेनिज़्म. जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जो भी डिमांड या सप्लाई हो रही है उसके हिसाब से क्या हो रहा है उसका प्राइस मैकेनिज़्म सेट किया जा रहा है ताकि इसके साथ साथ क्या है उसको अच्छे से प्रॉफिट भी मिल जाए उसका काम भी निकल जाए खर्चा भी निकल जाए. और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी प्राइस के मैकेनिज़्म को क्या किया जाता है सेट किया जाता है गवर्न किया जाता है. Competition. Under the capitalist economy system, the producer compete with each other to sell more goods in a less price. The consumer also try to purchase better goods in minimized price. Due to the competition among the producers and the inefficient producer have to quit the competition.
Thus, due to the competition, the efficiency of the economy increases. Thereby, the consumers get a cheaper and better goods. अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन क्या है, ये अंदर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें जो प्रोड्यूसर है उनको कई तरह के जो है कंपटीशन आते हैं। मान के चलिए अगर मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उसका प्राइस उसने काफ़ी ज़्यादा हाई रखा है और वैसा ही सेम प्रोडक्ट जो है वो उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट उससे चीपर प्राइस में आ जाए तो क्या हो जाता है, कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, लोग सस्ती चीज़ खरीदने लगते हैं और महंगी चीज़ को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या है, कहीं ना कहीं कंपटीशन की एफिशिएंसी भी बढ़ी रहती है। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जो है बेटर मिलती है लोगों को और बेटर वे में भी, चीपर वे में भी मिल जाती है। Unplanned economy. In a planned economy, all the decisions are taken by the government or a central authority, but in the capitalism economy is unplanned and the decisions are taken by the price mechanism or market forces. There is no government intervention in this system. अब देखिए unplanned economy क्या है, planned economy में बेसिक क्या होता है, सारी डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी और या गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो ये अनप्लान्ड डिसीजन है, ये सारा चीज़ जो है मार्केट का क्या फोर्स है, किस तरह की चीज़ें होंगी नहीं होंगी, ये इंडिविजुअल से लिए जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। Occurrence of a trade cycle. There is no coordination found between the producer and the consumer in the capitalist economy system. Therefore, the trade cycle become active. The meaning of trade cycle is the occurrence of the inflation and depression in the economy. The excessive production creates the situation of a deflation and the less production creates the situation of inflation. अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं डिफ्लेशन क्रिएट करता है और लेस प्रोडक्शन होता है और सिचुएशन को क्या है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का क्रिएट कर देते हैं। यानी ट्रेड साइकिल जो है ये, इसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपरली। कंज्यूमर सोवेरेनिटी. In capitalist economy, all the decisions related to the production are taken according to the consumer choice. अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जो कंज्यूमर की हम बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, कस्टमर के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ लाई गई है और वो चीज़ कंज्यूमर के द्वारा यूज़ की जा रही है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर नहीं की जा रही तो क्या होगा, उस चीज़ का प्रोडक्शन घट जाएगा। अब मेरिट्स क्या क्या है कैपिटलिज्म के, वो चलिए देखेंगे हम आगे। Automatic system. In this system there does not exist any government intervention. All the economic activity are governed on the basis of the price mechanism or the market forces. Therefore this system is called the automatic system. अब इसे automatic system क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में जो भी चीज़ें लग रही हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बातें की जा रही हैं, ये सारी की सारी कौन डिसाइड कर रहा है, ये प्राइस मैकेनिज़्म जो है इसके थ्रू डिसाइड किया जा रहा है या मार्केट फोर्स के थ्रू दिया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। Increase in the production and the income. A rapid progress has been registered in the Western countries through the capitalist system. These countries have developed rapidly in the greed of profit motive and the private property. In this system, the desire to compete improve the standard of technique of a production. As a result, in the capitalist economy, the production and income both are increase rapidly. अब देखिए इसमें जो है इनकम जो है ये और प्रोडक्शन जो है ये काफ़ी स्पीडली इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे जैसी डिमांड बढ़ रही है उसी तरह का प्रॉफिट भी मिलेगा और उसी तरह से प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाता है। चेंज नेचर. अब देखिए कैपिटलिज्म इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि ये चेंजिंग इन नेचर होता है, इसकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सिचुएशन। जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, लेबर पॉलिसी है, तो ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है, फंडामेंटल फीचर है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं क्या है टाइम टू टाइम चेंजेस परफॉर्म कर रही हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अंडर द जो ये कैपिटल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो भी ये ट्राई करते हैं, तो इनका मेन पर्पस क्या होता है कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ किया जा सके ताकि जो ऑब्जेक्टिव है जितना भी इन्हें फुलफ़िल करना है वो सारी चीज़ों को वो फुलफ़िल कर सकें। और कितना वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे वेस्टेज रिसोर्सेज को भी इनको चेक करना होता है। इनका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें मिली हैं, जो रिसोर्स मिला है उसका फुल्ली कितना यूज़ हम कर सकते हैं, मैक्सिममली कितना उतना रिसोर्स का ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो इनका मेन जो होता है फंक्शन होता है। Now we see the reward according to the ability. In this system, the efficiency and ability of a person is rewarded reasonably. Even every individual gets the opportunity to show his ability and efficiency briefly, and in capitalist system the reward is obtained according to one's ability. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी भी जितनी भी क्षमता होती है उसके हिसाब से सभी पर्सन को क्या होता है रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है एबिलिटी और एफिशिएंसी को और बढ़ाने का काम करता है और ज़्यादा इनकरेज करता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म.
अब देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म में क्या बताया गया है, अ सिग्निफिकेंट मेरिट ऑफ अ कैपिटलिज्म, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी। अब देखिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म में बेसिकली यही बताया गया है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये पूरी मेजॉरिटी के बेसिस पे लिया जाता है कि किस तरह का कंज्यूमर डिमांड है, क्या ओपिनियन है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली जो भी मेजर डिसीजन आता है उसके हिसाब से यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी को अपनी ओपिनियन रखने का हक है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, the history of the developed country of the world shows that the growth rate of the capitalist country has always been higher as it is based on the motive of the profit। अब देखिए अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ की जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वहाँ उनका जो मतलब जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा हाइयर है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा मोटिव उनका यही होता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, और इसी बेसिस पे जो है ये काम करती हैं। अब डीमेरिट्स क्या क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, वो चलिए हम देखेंगे आगे। Disparity in income and wealth. The greatest demerit of the capitalist economy is the centralization of the wealth in the hands of the few people of the country, whereas the maximum people spend their lives in the poverty and unemployment. The increased disparity in income and wealth. अब देखिए अब इसमें डिस्पैरिटी हो रही है क्योंकि इनकम और वेल्थ में, अब क्योंकि इसका डिमेरिट ये है कि सारा सिस्टम क्या है, जो इकोनॉमी है वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन है, यानी कुछ ही लोग जो हैं उनके हाथ में पूरा इकोनॉमी है और मैक्सिमम फ़ायदा वही उठा रहे हैं। लोगों को जो काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें उन्हें क्या हो रहा है, कम से कम वेल्थ मिल रहा है। बर्थ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अगर बर्थ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम के क्या क्लासेस हैं कि सारा चीज़ क्या है, मतलब ये जो सिस्टम है क्लासेस ये किसके बीच में आता है, कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास के बीच में। तो इसमें स्ट्राइक्स, लॉकआउट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है देखने को हमें मिलती हैं। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। The capitalist economic system is operated by the price mechanism. There exists no central authority to control the economy. As a result, the situation of inflation and deflation is created in the economy. Thus, the instability occurs in the trade cycle become active in the economy. अब देखिए इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्या है, अब मतलब कहीं भी कभी भी रिसेशन आ सकता है, कभी भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का ये जो टाइम रहता है, इस वजह से इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक तरह से अनस्टेबिलिटी इसकी बनी रहती है। इसका साइकिल इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेड साइकिल जो है ये एक्टिव हमेशा बना रहे इकोनॉमी में और प्रॉपरली चलता रहे। एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड इकोनॉमी। The producer class in the capitalist economy system for maximize the profit pay less wages to the laborers for more work is also taken from the laborers, ladies and the children are employed to work but a proper wages are not paid to them। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, मान के चलिए अगर अब किसी लेबर को हमने काम पे लगाया है तो जितनी मेहनत और जितना घंटे हम उनसे काम करा रहे हैं उसके बदले उनको जितना वेजेस हमें देना चाहिए उतना ना देके क्या हो रहा है, कम से कम वेजेस में उनसे काम करवाया जा रहा है और खुद से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक एक्सप्लॉयटेशन है। Disregard to a human welfare. In capitalist economy, goods are produced only for them who have purchasing power. Therefore, the commodities needed by the poor people are produced in the less quantity। अब देखिए अब ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसी प्रोडक्ट की को ज़्यादा बनाया जा रहा है जो लोगों द्वारा जो हाई क्लास के लोग हैं उनके द्वारा ख़रीदा जा सके। तो इस वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनके हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, जो उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए या पहनने के लिए मिलनी चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं की जा रही हैं जो कि गलत है। नाउ वी सी द रीजनल डिस्पैरिटी। अब देखिए रीजनल डिस्पैरिटी में क्या है, in the capitalist production the system only a few areas become the developed and the rest of the area left backward. The reason behind it is the setting up to the industries by the capitalists in those places where they earn a profit. Thereby the benefit of the development is enjoyed by a very few people. As a result, the regional disparity increase, the dissatisfaction arise among the people. Social parasitism। अब देखिए रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब हम देखेंगे सोशल पैराटिज्म। Due to the system of the inheritance, the capitalists obtain the huge amount of property from their ancestors without any work। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सोशल पैराटिज्म बेसिकली है क्या, कई बार क्या होता है कोई बिज़नेस जो है ख़ानदानी तौर पे चला आ रहा होता है, तो उसके पहले दादा कर रहे हैं, दादा के बाद उनके पापा, उनके बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, यानी क्या हो रहा है कुछ खासा हार्डवर्क ये नहीं कर रहे हैं लेकिन ख़ानदानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है इनमें डिस्ट्रीब्यूट होती चली जा रही है। तो ये जो कहलाती है इसी हम क्या कहते हैं, सोशल पैराटिज्म। अगर हम ब्रीफ
में इसे बोलें तो ये क्या है, ये ऐसी सोसाइटी है जो विदाउट लेबर मनी, मतलब इनको बिना किसी एक्टिविटी के पैसे अर्न करना ये सीख रही हैं। तो इसे ही हम कहते हैं सोशलिस्ट एविल, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं है कि किस तरह से अर्न हो रहे हैं, और उसी तरह से इसका वेस्टेज क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जाता है। अब हम देखेंगे आगे विच इज़ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम क्या है? द इमर्जेंस ऑफ द सोशलिज्म was in order to eradicate the evils of the capitalist system। अब जो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या है, इनको ये जितने भी एविल्स हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम के, उनको इरेडिकेट करने का है। कार्ल मार्क्स इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द सोशलिज्म। जो कार्ल मार्क्स है उन्हें फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। इस इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन प्रोडक्शन है सोसाइटी का इंडिविजुअल अर्न करता है, बाकी सारे पर्सन नहीं कर पाते हैं। उनके हिसाब से जो है कई सारे फैक्टर्स जो हैं ये इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, कई सारी चीज़ों को जिसे हमें नहीं करना है, जो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर किसी के हिसाब से जो है यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की अलग डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब क्या क्या फीचर्स हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, चलिए वो देखते हैं आगे। द कलेक्टिव ओनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब जो कलेक्टिव ओनरशिप है क्या है वो देखेंगे यहाँ पे। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम द फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन आर यूज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर। अब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम है उसके फैक्टर जो है उसमें जो सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है जो प्रोडक्शन, वो उससे रिलेटेड है। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल प्रॉफिट मोटिव इज़ ज़ीरो। और ऐसे सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉफिट जो रहता है ये ज़ीरो रहता है, और ये पूरी तरह से सोशलिस्ट सिस्टम रहता है, मतलब इनका जो भी प्रोडक्शन है ये सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा ध्यान देता है। एज इन दिस सिस्टम द फैक्टर प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और इन द सोसाइटी, therefore it is there is no possibility of exploitation and the social welfare increases। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सोशल फैक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है, तो एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस जो है यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, और ये सोशल वेलफेयर को जो ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? द सोशलिस्ट सिस्टम इज़ अ प्लान्ड सिस्टम, सेंट्रल प्लानिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इट, ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग अ प्रोडक्शन आर टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, दिस रिजल्ट इन द रैपिड डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? जो भी सोशलिस्ट सिस्टम है, जो प्लान सिस्टम है, ये सेंट्रल प्लानिंग यानी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, क्या चीज़ें होनी है नहीं करनी है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग अथॉरिटी की वजह से ही क्या होता है, ये रैपिड ग्रोथ जो है इस डेवलपमेंट में हो पाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन दिस सिस्टम ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड द फैक्टर्स यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इन दिस सिस्टम इंडिविजुअल प्रॉफिट हैज़ नो स्पेस। अब इकोनॉमिक क्वालिटी जो है ये क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक तौर पे जो है ये पूरी चीज़ों का बराबरी से ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात नहीं है, इसलिए ये सारा काम जो है क्या है काफ़ी अच्छे से किया जाता है और सोसाइटी के लिए किया जाता है। एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। अब इसके थ्रू क्या है, एंड कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का एंड हो रहा है। इन द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होना है या डिस्ट्रीब्यूशन होना है ये सारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन डज नॉट अराइज। इसीलिए जो भी हम एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कभी अराइज नहीं होता है। द लेबर आर पेड प्रॉपरली फॉर देयर लेबर। अब देखिए जो भी मज़दूर होते हैं उनके काम का जितना हक बनता है उतने पैसे का उनको पूरा दिया जाता है। The labor have the partnership in the production and the sufficient share from the profit given to them। इसके साथ साथ क्या है, जो लेबर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सफिशिएंट शेयर उनको मिलना चाहिए प्रॉफिट का, वो उनको ही दिया जा रहा है। सो इन दिस सिस्टम चांसेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन आर नॉट देयर। सो इसीलिए इस सिस्टम की वजह से क्या है, एक्सप्लॉयटेशन चांसेस होने के बहुत ज़्यादा कम है। The labor is needed for living. In this system, everybody has to do some labor of his living. By this, the class of the society who depends upon the income of the others for it living is abolished. Each person works according to his ability, and in return, they receive the reward according to their needs. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आएगा काम करेगा तो उस हिसाब से पैसे ले जाएगा सोसाइटी के, बल्कि यहाँ ऐसा है कि जो भी पर्सन काम कर रहा है वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसे पैसे दिए जाएंगे और उसको उसी तरह से रिवॉर्ड किया जाएगा। अचीवमेंट ऑफ अ फुल एम्प्लॉयमेंट।
In socialism, all the economic activity are conducted according to the labor available. Full attention to is paid toward the proper utilization of a manpower. अब इनका जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का ये ज़रिया रहता है कि हर एक पर्सन को जो है पूरा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है उनके लिए अवेल रहे। इसके साथ साथ उनके मैन पावर पे भी जो है पूरा अटेंशन दिया जाता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो है यहाँ पे कोई मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है एग्जिस्ट नहीं करती है। Economic stability. In this system, the economic activity are conducted in a planned way. Therefore, due to this, the problem of inflation and the deflation do not arise. अब यहाँ पे जो भी काम किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, पूरे प्लान वे में होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक प्लान वे में हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द प्राइस मैकेनिज़्म, ये प्राइस मैकेनिज़्म का जो चल रहा है, मतलब जिस हिसाब से मान लीजिए मार्केट में डिमांड है तो उसकी प्राइस बढ़ा दी गई, मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्राइस कम कर दी गई। इस सारी चीज़ों का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कोई एक प्राइस जो है वो पूरी तरह से डिसाइड कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट, और यही सारे म्यूचुअल कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली ये मॉडिफाई की जाती हैं, भेजी जाती हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, और ना ही इन सारी चीज़ों के लिए किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेरिट ऑफ द सोशलिस्ट इकनॉमी। अब सोशलिस्ट इकनॉमी की क्या क्या मेरिट्स हैं, चलिए देखते हैं हम आगे। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सोशलिस्ट इकनॉमी सिस्टम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब देखिए, जितने भी रिसोर्स इनके पास दी गई हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, यानी जितना भी रिसोर्स है उसका जितना यूज़ किया जा सकता है उस हद तक उसे यूज़ करके उसका मतलब बेसिकली उसका प्रॉफिट हमें निकालना है। ड्यू टू द सेंट्रल प्लानिंग इन अ सोशलिस्ट सिस्टम द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल। द रिसोर्सेज बाय द प्रॉपर प्लानिंग आर शिफ्टेड फ्रॉम द एरियाज ऑफ द लेस प्रोडक्टिविटी टू द एरियाज हैविंग अ मोर प्रोडक्टिविटी। Along with this, economic activity of a different sector of the economy are coordinated. It makes the utilization of factors of the production is optimum. Now we see the economic stability. अब economic stability कैसे है यहाँ पे? Due to the central planning in the socialist system between the areas of the consumption and the production, both mutual coordination is found, and therefore the situation of excessive production or less production does not exist. अब देखिए, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल प्लानिंग की वजह से जो भी चीज़ का प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, कितना है, क्या है, ये सारे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से पाया जाता है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं होती है कि किसी तरह का प्रोडक्शन जो है वो एग्जिस्ट ना करे या कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिले। इकोनॉमिक इक्वालिटी। In the socialist system, there is no place for a private property, laws of inheritance, and the tendency of earning profit. Property and factor are owned by the state. The job is given to the people as per the ability and efficiency. The economic equality is found in this system. अब देखिए, यहाँ पे कोई जो है, यहाँ पे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई बात ही नहीं रहती है। सारी चीज़ें क्या है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के टेंडेंसी पे चलती जाती है और उसी तरह से प्रॉफिट अर्न करती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी का जो बैलेंस है ये हमेशा बना हुआ रहता है। एंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वो ओनर है तो गवर्नमेंट का ऐसा होगा या कोई लेबर है तो ऐसा होगा। यहाँ पे किसी तरह का क्लास का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्लास की कॉन्फ्लिक्ट होती थी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इन द सोशलिस्ट सिस्टम देर आर नो कैपिटलिस्ट। अब देखिए, सोशलिस्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली काम कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसा कैपिटलिस्ट फॉर्म नहीं है कि कोई अपनी ही प्रॉफिट को देख ध्यान में रखते हुए काम करे। तो यहाँ पे किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है कि जितना भी काम निकाला जा रहा है उसके बदले उस एम्प्लॉय को कम वेज दिया जाए, यानी जितना काम करवाया जा रहा है उतना ही उसे उतना काम भी दिया जा रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन का एंड हो जाता है यहाँ पे। End of unemployment. In socialist system, it is decided through the planning that the available manpower in the country shall be utilized fully. अब देखिए, यहाँ पे जो काम है, यानी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कंट्री में, कितने मैन पावर है, कितने की ज़रूरत है, तो उतने ही लोगों को उतना काम सबको देना है। तो कहीं ना कहीं सबको काम देना है, तो फुल जो यूज़ करना है उस रिसोर्स का, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है मैन पावर का। तो कहीं ना कहीं क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को ये ख़त्म कर रहा है। एंड ऑफ अ मोनोपोली। इन अ सोशलिज्म ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, देयरफॉर द वेल्थ एंड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर नॉट सेंट्रलाइज्ड इन द hands of a few individual or a class. As a result, the monopolistic forces
हैव नो रोल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी मोनोपोली रहती है कि इस तरह का प्रोडक्शन करना है, इसी तरह की चीज़ों को बढ़ाना है और बाकी चीज़ों को नहीं सेंट्रलाइज़ करना है, तो ये वाली चीज़ क्या है यहाँ पे नहीं खद रहती है, पूरी तरह से ख़त्म है वो चीज़। अब सोशल सिक्योरिटी इन द सोशलिस्ट सिस्टम प्रोवाइड द पेंशन टू ओल्ड पीपल, अलाउंसेस टू अनएम्प्लॉयड एंड मेडिकल फैसिलिटी टू सिक पीपल, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन etc। अब सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे क्या क्या है, देखिए आपको मेडिकल मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड हैं, अगर एम्प्लॉयड हैं आप तो आपको अलाउंसेस दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है बूढ़े लोगों को, और सारी मेडिकल फैसिलिटी जो सिक पीपल हैं, एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अच्छी है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब देखिए इनके क्या क्या डीमेरिट हैं सिस्टम के, अब हम वो देखेंगे। एंड ऑफ द कंज्यूमर सोवरेनिटी इन सोशलिस्ट सिस्टम कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम थिंग्स ऑफ हिज चॉइस। अब देखिए कहीं ना कहीं डीमेरिट क्या हो रहा है, मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वहाँ पे ये हो रहा था कि अगर कोई चीज़ पसंद है कंज्यूमर को तो वो वही चीज़ खरीद रहा है, वही खा रहा है और उसी चीज़ की प्रोडक्शन में तेज़ी हो रही है। यहाँ पे लेकिन कंज्यूमर को कोई चॉइस नहीं मिलती है, जो चीज़ प्रोड्यूस कर दी गई है वो उन्हें लेनी है, जितनी क्वान्टिटी उनके लिए चूज़ की गई है उसी क्वान्टिटी में वो चीज़ उन्हें मिलनी है। तो कंज्यूमर चॉइस यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, तो यही है एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। अब देखिए आगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर। अब इन दिस सोशलिस्ट इकोनॉमी द सिस्टम ऑफ पावर आर सेंट्रलाइज्ड बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, द ऑर्डर टू द गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंटेड एट ऑल लेवल, देयरफॉर इन दिस सिस्टम the power is centralized completely in the hands of the government, there is no place left for the individual freedom। अब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि किसी इंडिविजुअल की कोई फ्रीडम नहीं रह जा रही है। Lack of a motivation for a production work. In a socialism, all the production work is controlled by the government, so individual freedom has no place in it, and in such situation, labor is not motivated to do more work. It does not have a scope for a new invention, research work, and new techniques of a production। अब देखिए क्या है, क्योंकि ये सरकारी काम हो रहा है तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरह से इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम नहीं है कि हाँ मतलब कि वो और ज़्यादा काम करे, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, और काम करने का जो मोटिवेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता चला जाता है। इसीलिए न्यू तरह के इन्वेंशन, रिसर्च वर्क और नई टेक्निक लाने का चीज़ें जो है, ये जो चीज़ क्या हो रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता चला जा रहा है। लैक ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम, अब हर किसी की क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। इरेशनल यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सोशलिज्म फंक्शन में क्या हो रहा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, परफॉर्म की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसमें क्या है, वर्कर्स को किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और इस क्विक डिसीजन की वजह से जो है कई तरह से क्विक डिसीजन ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में। अब हम देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economy is a system in which the public and the private, both the sectors, work together, and the role of both the sectors in the economy is determined in such a way that the welfare of all classes of the society increases significantly. In mixed economy, the private and the public sector are closely related to both the work as the two constituents of the unit. In the mixed economy, the ownership, control and the direction of the industries established under the public sector is that of the government. On the contrary, the ownership of the control, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इसमें हर तरह से कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट का भी हाथ है, कुछ जगह में इंडिविजुअली भी काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जो इकोनॉमी चल रही है इसे जॉइंट सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अब मेन फीचर्स क्या है इस मिक्स्ड इकोनॉमी के, वो हम देखेंगे। Coexistence of the public and private sector. The significant feature of this mixed economy is the coexistence of public and private sector. The functions are clearly divided between these two sectors. अब देखिए जो भी एग्जिस्टेंस हो रहा है ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर में जो भी चीज़ें कह रही क्लियरली क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड की जा रही हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम. In the mixed economy, the decisions such as division of the economy activity between a private and public sector determined by the policy determination of the aims and objective. Distribution of the resources etc. are taken by the public representative. Thus, the mixed economy operates as per the democratic method and the tendency of the monopoly and the dictatorship are not found in it. अब इसी में जो है डेमोक्रेटिक के बारे में बताया गया है कि किसी तरह का कोई डिक्टोरशिप नहीं होता है, सारी चीज़ें जो हैं पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करके म्यूचुअल डिसीजन के साथ ली जाती है।
इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये अच्छी तरह से अडॉप्ट की जाती है, डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, फिजिकल और फाइनेंशियल एम को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे सेक्टर क्या है पूरी तरह से एक फिक्स्ड एम रख रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम, economic independence existed in the mixed economy but is less is compared of the capitalism. In this system the limited economic freedom is provided to the individual industrialist, keeping in mind the social interest and the welfare. In the mixed economy, although the consumer sovereignty does not exist in the capitalism, even the individual freedom is not totally absent in the form of economic planning. अब देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम जो है दोनों ही तरह से, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को ध्यान नहीं रखा जा रहा है या बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली पूरे वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम को आगे बढ़ाया जाता है। कंट्रोल ओवर द प्राइस मैकेनिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है तो पब्लिक वेलफेयर और रहता है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल भी रहता है। तो उन्हीं के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है प्राइस मैकेनिज्म को रखा जाता है, पूरी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा हाई करके नहीं मिलेगा आपको, सारी चीज़ें क्या मिलेगी प्रॉपरली जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से ही दी जाती है। प्रॉफिट मोटिव क्या है, द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट इट्स इकोनॉमी एक्टिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग अ प्रॉफिट। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो अलॉटेड टू द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मोटिव भी जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी का। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, कितने प्रॉफिट निकालना है, कितना ज़रूरी है, कितना प्रोडक्शन अलॉट किया गया है, उसके हिसाब से ही जो है सारी चीज़ें क्या होती हैं डिसाइड की जाती हैं। कंट्रोल ओवर द प्राइस मैकेनिज्म, ये हो गया है। Now we see the economic equality and the social justice. A private property right of inheritance and the other freedom are found in the mixed economy. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो राइट है या इनहेरिटेंस है ये सारी चीज़ें हमें मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलती है। बट द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इम्पोज टैक्सेस ऑन अ रिच एंड द स्पेंड्स द इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें क्या की है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए कई सारे टैक्सेस जो हैं रिच लोगों पर लगाई हैं, ताकि जितना वो इनकम मतलब स्पेंड कर रहे हैं उतना ही उनको क्या है टैक्स पे करना है, ताकि वो सारी चीज़ें सोशल वेलफेयर में या पुअर लोगों के लिए यूज़ की जा सके। अब देखेंगे हम सोशल सिक्योरिटी। द गवर्नमेंट पेज द सोशल अटेंशन ऑन द सोशल सिक्योरिटी, मतलब जैसे कि जो हमारी बात करें कि ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अलाउंसेस है, इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स और डेथ, ये सारी चीज़ों में क्या है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम आती है। तो ये सारा पैसा यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अब मेरिट क्या क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी की, चलिए वो देखते हैं हम आगे। फॉलोइंग आर द मेन मेरिट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस सिस्टम, द प्राइवेट एंड द पब्लिक बोथ सेक्टर्स वर्क टुगेदर एंड ट्राई टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। द रिसोर्सेज आर allocated in the optimum proportion to the various section of the economy by adopting the economic planning. In this way the rate of the economic development is increased by the optimum utilization of the resources. अभी इसमें देखिए कहीं ना कहीं क्या है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि दोनों सेक्टर जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं और सारे पब्लिक और प्राइवेटली सोच समझ के डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत रैपिडली बढ़ा रहा है। चेक ऑन द सेंट्रलाइजेशन एंड मोनोपोली, सारी सेंट्रलाइजेशन जो डिसीजन होते हैं जो लोगों की मोनोपोली है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे काम किया जा रहा है। कोई भी एक चीज़ सेंट्रलाइज नहीं है कि हाँ एक डिसीजन ले लिया गया तो वही सही है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के म्यूचुअली डिसाइड किया जा रहा है क्या गलत है क्या सही है और किन चीज़ों की ज़रूरत है मार्केट में, किस तरह की एक्टिविटी हमें करनी है। प्रेजेंस ऑफ द फ्रीडम एंड मोटिवेशन, अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम भी है प्रोड्यूसर को और इंडिविजुअल को, ताकि वो वर्क के लिए मोटिवेटेड रहें अपने पर्सनल प्रॉफिट और बाकी चीज़ों को कमाने के लिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें अर्न करने के चक्कर में जो है वो एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा काम करेंगे, प्लस कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट लोग हैं यानी जो बिजनेस भी करें उन्हें भी उसका प्रॉफिट होगा। रिडक्शन इन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब इन जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है उस चीज़ का भी रिडक्शन कैसे है। इन दिस सिस्टम टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी द गवर्नमेंट रिसीव द इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्स। अब देखिए अब जो भी अगर हम बात करें रिच पीपल की, तो रिच पीपल जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि अब वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स भी इम्पोज कर दिया कि आपको इतना टैक्स देना है, और कहीं ना कहीं वो टैक्स जो है वो स्पेंड किया जा रहा है सोशल वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल के लिए। तो ये जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कम करते चला जा रहा है। इंडस्ट्रियल पीस एंड द सोशल सिक्योरिटी, अब इस तरह से क्या है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पीस हो रहा है, मतलब लोगों को काम मिल पा रहा है, इसके साथ साथ उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें जितने खर्च होने चाहिए उतने खर्च भी उनके हिसाब से मैनेज हो पा रहे हैं। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी से कहीं ना कहीं क्या है सोशल सिक्योरिटी लोगों की बनी हुई है।
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए जितने लोग हैं उतने हिसाब से काम दिया जा रहा है, उन्हें उनका पूरा बेसिकली हम कह सकते हैं उन्हें पूरी एम्प्लॉयमेंट, पूरी वेजेस दी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपरली और फुल यूज़ किया जा रहा है। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट किया जाता है कई लोगों को। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पा रही है। जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है, गवर्नमेंट का काम भी हो रहा है, लोगों को वेजेस मिल पा रही हैं। तो सही चीज़ें क्या हो रही है, प्रॉपरली एक बैलेंस में चल रही हैं। अब हम देखेंगे डीमेरिट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के डीमेरिट्स क्या क्या हैं, वीक एंड द इनएफिशिएंट सिस्टम। अब ये वीक और इनएफिशिएंट क्यों है, चलिए देखेंगे हम आगे। The working of the public sector and the private sector found in a mixed economy is totally inverse. Therefore, they cannot be proper coordination between them. Consequently, the economy cannot be executed efficiently. Both the sectors become the competitor instead of the supplementing each other. Therefore, the system is considered as weak and inefficient system. अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक सेक्टर अपने हिसाब से काम करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम करना चाहता है। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लोग जो है एक साथ मिल के ना काम करके जो सप्लीमेंट होना चाहिए, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, वीक और इनएफिशिएंट सिस्टम बना रही है। फियर ऑफ अ नेशनलाइजेशन। इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ द नेशनलाइजेशन ड्यू टू द फियर ऑफ अ स्पेशल इंटरेस्ट एंड द मोटिवेशन इज नॉट देयर. So among the entrepreneurs toward the investment due to the fear of a nationalization, foreign entrepreneurs do not invest their capital in this country. अब देखिए क्या होता है, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अपने ही लोगों को, अपनी ही मैन पावर को किस तरह से यूज़ करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सारे काम करवाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, कोई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें पता होता है जितना प्रॉफिट शायद उनको वहाँ से निकालना है वो चीज़ उनको क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। इनएफिशिएंसी क्या है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी द डिमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म बोथ एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम. नीदर प्लानिंग मैकेनिज्म कैन वर्क प्रॉपरली nor market mechanism can be activated. The spread efficiency in this economy. अब inefficiency का मतलब क्या है कि इसके कई सारे डीमेरिट है। तो प्लानिंग मैकेनिज्म कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है मार्केट में और एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है। नो एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रही है, पब्लिक सेक्टर को दे रही है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से निगलेक्ट होता चला जा रहा है। तो ये जो है ये सही नहीं है और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये ऐसी चीज़ें को फेवर नहीं करती है जो कि प्राइवेट सेक्टर को करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। Inflow of the foreign capital. The government invite the foreign capital for the expansion of a public sector. This increases the influence of the foreign powers. Foreign power over time influences political system of the country. अब देखिए, अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है फॉरेन कैपिटल्स को क्या कह रही है, एक्सपांड करने की कोशिश करी कि वो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करे। लेकिन जब वो अगर पब्लिक सेक्टर में स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, फॉरेन पावर से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। तो फॉरेन पावर जो है कहीं ना कहीं टाइम के साथ यहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है कंट्री में, इन टर्म्स ऑफ अगर हम पॉलिटिकल की बात करें। लैक ऑफ प्रैक्टिकबिलिटी। अब लैक ऑफ प्रैक्टिकबिलिटी क्या है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ वर्क टुगेदर, देयर बाय द पॉलिसीज विच आर बेनिफिशियल टू द वन सेक्टर मे बी हार्मफुल टू द अनदर। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम क्योंकि इकोनॉमी जो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो प्राइवेट और पब्लिक मिल के काम कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉलिसीज़ देखी जाए तो एक पॉलिसी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है तो गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल है, अगर गवर्नमेंट के लिए अच्छी है तो वो क्या हो रही है, प्राइवेट के लिए हार्मफुल हो रही है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ये एक दूसरे से ही कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। एज अ रिजल्ट क्या अफेक्ट हो रहा है, ये इकोनॉमी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।